सरकार की पहल बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को भारत में बाल विवाह के प्रचलन के रोक लगाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसे में अब आगे का रोड मैप आपके लिए अब क्या दिखाई दे रहा है? भारत सरकार की बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू करने की पहल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। बाल विवाह कोई भारतीय अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व में व्याप्त है। लेकिन भारत में पहली बार न केवल समाज, न केवल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस पे अहम फैसले आए हैं, बल्कि पूरी सरकार ने इस पे जो कदम उठाया कि हम भारत से बाल विवाह को 2030 से पहले खत्म करके दम लेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में न केवल जागरूकता होगी, न केवल गांव-गांव में लोग इस पे शपथ लेंगे, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये अभियान पहुंच चुका है और पहुंचने वाला है। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में देश के हर गांव में, हर स्कूल में बच्चों के बीच में जागरूकता होगी, अगर हर पंडित, हर मौलाना, हर चर्च का पादरी, हर धर्मगुरु इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगा, अगर हर बैंड वाला, हर हलवाई, हर वो व्यक्ति जो कि समाज में शादी को किसी भी तरह से मदद करता है, वो अगर ये पूछने लगे कि ये बच्चों की उम्र क्या है जिसके लिए मैं ये बैंड देने वाला हूँ, ये घोड़ी देने वाला हूँ। भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शादी, ये एक समाज का उत्सव है और समाज के इस उत्सव को किसी भी तरह से बच्चियों के बलात्कार का, के जघन्य अपराध का जरिया नहीं बनाया जा सकता। तो समाज इसमें अब आगे बढ़ के आएगा और सरकार ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। सरकार द्वारा शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान न केवल पूरे देश को ये दिशा दे रहा है कि सरकार भी इसमें साथ है, समाज तो आगे बढ़ेगा ही। और कल अगर कोई बच्चा फोन करता है, कल कोई सामाजिक संगठन यदि इसके खिलाफ आवाज उठाता है, कल यदि कोई पंडित, कोई मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम ये शादी नहीं करेंगे, तो उसके पीछे कानून का पूरा जोर है। कानून, समाज, सरकार और हम सब बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। आज ये साबित हो गया है। Now, Bhuvan ji, the Bal Vivah Mukt Bharat campaign, it's built on the foundation of relentless hard work that's been done by various NGOs. Your own organization, Just Rights for Children. So now going forward, how do you think you can use civil society as well as other NGOs that are working on this to really amplify this entire campaign and the messaging? Child marriage is an age-old problem, and efforts have been undertaken to solve this crime and solve this human rights abuse in its worst form from at least 200 years. In the last 200 years in India, yes, efforts have been made by various stalwarts. Today we have reached that tipping point where there is a whole of society and a whole of government approach which has come together. This will usher in a new culture, a new era of accountability, a new era of action. This is the tipping point to end child marriage. We are living it right now because for the first time we have scientifically understood that the problem is existing in the worst 330 odd districts, and if we are able to reduce this by 70% in these districts, we will reach the tipping point of ending child marriage, and child marriage prevalence will become 2.9% over the next 5 years. So we have not only ushered this in through a lot of emotion, through the hard work and efforts by these ladies that you are seeing on the screen, yes, you know, all around us. These women started this campaign. They actually took the first steps to light this fire, and this spark has become a wildfire not only in India but across the world. It started from India, but in the last 1 month, in 39 countries, people have taken the pledge. Countries like Burkina Faso, Democratic Republic of Congo, countries like Zimbabwe, Zambia, countries whose names sometimes we have not heard are now looking at India. India has not only become the Vishwa Guru in other things, but this is India's message to the world in the 21st century, that we will end child marriage now through this collective accountability and responsibility. So this is changing as we are speaking. जी बिल्कुल। और भुवन जी, आपके जीवन का भी लक्ष्य रहा कि हमारे देश में बाल विवाह पूरी तरह से रुक जाए, उसकी रोक लगे, और
ऐसे में आपकी अपनी जर्नी कैसे रही है अपने लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंचने में, और जो राष्ट्रीय अभियान अब भारत सरकार का है वो कैसे आपके अपने अभियान से जुड़ रहा है? आज से करीब 12-14 वर्ष पूर्व एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक बिटिया की शादी होने वाली है अंडमान में, जिसने पुलिस को कंप्लेंट की है ऑफिशियली कि मुझे शादी से बचाया जाए, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप तुरंत कार्रवाई कर दीजिए। अब दुर्भाग्य ये था कि भारत का कानून उस वक्त तक ऐसी कोई बेटी जिसकी शादी होने वाली है उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था, कोई कानून में प्रावधान ही नहीं था। पुलिस एफआईआर कब काट सकती है? तब काटेगी जब शादी हो चुकी है। तो अपराध के बाद तो पुलिस का रोल है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए हम सिर्फ माता पिता को समझा सकते थे। सो हमने किया, माता पिता को समझाया गया, पुलिस अधिकारी वहाँ गए, और बहुत ही दुख की बात ये थी कि उस बेटी की शादी उन्होंने अंडमान से निकाल के तमिलनाडु लाए और तमिलनाडु में कर दी 2 महीने बाद। इस बच्ची ने उस पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारा होने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वहाँ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम छोड़ दो ये सब जो तुम्हारा ज्ञान है ये बेकार है, ये जितना भी तुम बाल अधिकारों की सुरक्षा की कानूनों की बात करते हो, अगर हम उस बच्ची को बचाने में नाकामयाब हो गए तो अब फ़ायदा क्या है? वो बेटी तो फ़ोन करके कह रही है कि कोई तुक नहीं है। इस घटना के कुछ वर्ष के पश्चात भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो निर्भया के कांड के बाद एक पूरा बदलाव आया, पूरे मूलभूत परिवर्तन हुए कानूनों में, उसमें ये एक बदलाव था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। मैंने उसकी ड्राफ्टिंग में सरकार की मदद की थी। तो मैंने तब सरकार को ये सुझाव दिया कि एक ऐसी बेटी जो कि शादी जिसकी होने वाली है, हु इज एट इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, शुड बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको सरकार उसकी सुरक्षा के लिए उसके माता पिता से उसकी कस्टडी ले सकती है। ये कानून में बदलाव हुआ, आज ये बदलाव है। ये 2015-16 की बात है, और शादी अगर कर दी जाए तो माता पिता के ऊपर तभी कानून में बदलाव आया कि एक क्रूल्टी माना जाएगा। 2016 में हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की कि अगर किसी बच्ची के साथ शादी होने के बाद भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या यौन संबंध स्थापित करता है तो इसे बलात्कार माना जाए, इसको पॉक्सो की श्रेणी में रखा जाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस पे फैसला दिया। आज भारत में ये आईपीसी की प्रॉपर ऑफेंस है, सेक्शन 63 जो बीएनएस अभी आया है, भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और शादी के भीतर भी होता है तो ये रेप माना जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके हमने कानूनों को बदला। अब उस बेटी को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन भारत की तमाम बेटियां जिनको बचाने की ये मुहिम जारी है और शुरू हुई है, पिछले 1 साल में 2,15,790 बेटियों की शादी हमारे संगठनों ने सरकार की मदद से जाके न केवल रोकी है, बल्कि माता पिता को उसके बारे में जागरूक करा के उनसे अंडरटेकिंग लिखवाई है कि शादी हो गई तो तुम जेल चले जाओगे जी। इससे समाज में एक नए जागरण, एक नए किस्म के जो कानून के प्रति रिस्पेक्ट है उसका एक भाव जागृत हो रहा है। तो मुझे लगता है इसी दिशा में आगे हम बढ़ेंगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी।